السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ اگر سادہ یا پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی تو 17 پیوند لگی قمیض والے حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہ بنتے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے نہ ملاتا۔ کھجور کو روزانہ ناشتے میں کھانے سے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میٹھی چیز کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ بارش کا پانی جسم کو پاک کرتا ہے اور امراض کو دور کرتا ہے۔ شوگر کی بیماری میں کلونجی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تقریباً 4 ہفتوں تک صرف 6 دانے فجر کے وقت اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نکل لیں، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ ہلدی جسم کے درد کو دور کرتی ہے۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ کڑوے بادام کا تیل سر پر لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ ادرک استعمال کرنے والا بندہ زندگی بھر بیمار نہیں ہوتا۔ اچانک بخار ہو جائے تو میتھی کا پانی پینے سے بخار فوری دور ہو جاتا ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ جس کو دمہ کا مرض ہو اس کو چاہے کہ کھانے میں اجوائن استعمال کیا کریں۔ گلے کے درد میں دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ بخار کا مریض سیب کا پھل استعمال کرے۔ جو انسان ضعیف ہو جائے یا زیادہ کمزور ہو جائے اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلاؤ، بہت طاقت بڑھتی ہے۔ زیادہ پانی پینے کے بعد پھل کھانے سے معدے میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔ دیسی اجوائن 1 چھوٹا چمچ دن میں 1 بار پانی کے ہمراہ لیں، اس سے چہرے کا رنگ نکھر جاتا ہے اور پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ ہری سبزیاں مثلاً مٹر، مولی، ساگ اور سلاد کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ دھوپ کے اندر نکلنے کی وجہ سے رنگ کے سانولا پڑ گیا تو انگور کا تھوڑا سا رس چہرے پر مل لیں۔ جب رس خشک ہو جائے تو چہرے کو دھو لیں۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگا لو، داغ دور ہو جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کے پتے چبا لو، افاقہ ہوگا۔ رات کو وضو کر کے سویا کرو، برکت ہوگی۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ زیادہ کھانے والا سوچتا رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے۔ عورت کو روزانہ رات کو چلغوزہ کھلا دیا کرو، رنگ سفید ہو جائے گا، جھریاں ختم ہونے لگے گی اور چہرے پر نور آ جائے گا۔ خربوزے کے چھلکوں کو ابال کر پانی سے اپنا منہ دھو لیں، رنگ صاف اور گورا ہو جائے گا۔ روزانہ اپنے ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں پر تلوں کے تیل کی مالش کر کے سویا کریں۔ آپ کافی ساری رات بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ نہار میں روزانہ شہد چاٹ لینے سے کوئی بھی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ اسبغول روزانہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے اور معدے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ، آپ کی یادداشت تیز ہوگی اور حافظہ مضبوط ہوگا۔ بھولنے کا مسئلہ، یادداشت کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو دودھ میں بادام
और खजूर डालकर खाया करें। 70 साल तक कोई बात नहीं भूलेगी। दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज हो जाएगा। अगर अपनी सेहत को हमेशा के लिए अच्छी रखना चाहते हैं तो चावलों के बाद दूध ना पिएं। नहर में भुने हुए चने खाने से कभी हफ्जा कमज़ोर नहीं होगा। रोगन बादाम पी लेने से दिमागी कमज़ोरी, दिमागी खुश्की और चक्कर आना बंद हो जाते हैं। जिन अफराद पर मोटापा आ जाए या टांगों में खिंचाव रहता है वो चावल हरगिज़ ना खाएं। जिन लोगों को अक्सर पेट में गैस की शिकायत रहती है उनको चाहिए कि हर खाने के बाद काला जीरा, काली मिर्च के दाने की मिकदार के बराबर पानी के साथ खाएं। धूप का हमारे दिमाग पर भी असर होता है। डिप्रेशन ख़त्म होता है और मूड अच्छा रहता है। धूप कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। कीनू खाने से पेट की चर्बी कंट्रोल में रहती है। सजदे के अंदर चेहरे और दिमाग की तरफ खून का बहाव बढ़ जाता है। यूँ दिमाग की सेहत बेहतरीन रहती है और चेहरा निखरता है। वज़न कम करने और मोटापा दूर करने के लिए रोटी खाएं, पराठा ना खाएं, ताज़ा फलों की चाट खाएं, मिठाई और आइसक्रीम ना खाएं, दही भल्ले या छोले खाएं, समोसे पकोड़े ना खाएं, उबले हुए चावल खाएं, बिरयानी या पुलाव ना खाएं, घी में पके खाने ना खाएं, बल्कि तेल में पके खाने खाएं। अगर आपको लेटे हुए भी चक्कर आ रहे हों तो अपना एक पाँव ठंडी ज़मीन पर रखें। पानी के बाद दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला मशरूब चाय है। सोने सोते वक्त पाँव में जुराब या सर पे कैप नहीं पहननी चाहिए। अगर हलक में मछली का कांटा फंस जाए तो गुड़ खाना चाहिए। रात को सोते वक्त एक चुटकी कलवंजी पानी के साथ लें। चंद दिन के इस्तेमाल से मैदे की जलन ख़त्म हो जाएगी। तेल का इस्तेमाल मायूसियों को दूर करता है। हाथ से कपड़े धोने से डिप्रेशन दूर होगा। तेजी से रोटी खाने वाले लोगों को दिल की बीमारियां घेर लेती हैं। दांतों पर ठंडा गरम लगने लगे तो फौरी नमक के पानी से गरारे करो। जिस औरत की रोजाना तारीफ कर दी जाए ऐसी औरत हमेशा जवान रहती है। नहाते वक्त पेशाब आ जाए तो ये मैदे की कमजोरी की अलामत है। शहद की मक्खी काट जाए तो सिरका में नमक शामिल करके मुतासरा जगह पर लगा दें और डंग निकाल दें। दर्द और सूजन कम हो जाएगी। आड़ू बाकायदगी से खाओ। यह मैदे की सफाई करते हैं और मैदे की बीमारी नहीं होती। गीले बालों में कंघा करने से परहेज करो। इससे बाल कमज़ोर होते हैं। सब्ज टमाटर पुट्ठों के दर्द को दूर करता है। अगर आप हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो खाने के बाद एक कतरा भी पानी का ना पियो। जिस घर में मियाँ बीवी झगड़ते हैं ऐसे घर में रिज्क की तंगी हो जाती है। पेशाब कतरा कतरा करके आए तो ये मैदा खराब होने की निशानी है। चावल वाले पानी से चेहरा धोने से चेहरे की चिकनाई खत्म हो जाती है। दोपहर के खाने के बाद कुछ देर कुलूला कर लिया करो। बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। डिप्रेशन का शिकार रहने से बाल जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों का मैदा अक्सर ख़राब रहता है उनको चाहे कि वो अंगूर ज़्यादा इस्तेमाल करें। इफ्तार के वक्त फ़ौरन ठंडा पानी पीने से मैदे में गैस और जिगर में वर्म का खतरा बढ़ जाता है। नहाने से पहले बालों में सरसों के तेल की मालिश कर लिया करें। इससे आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। जौ और चने का आटा मिक्स करके शुगर वाले मरीजों को इससे रोटी बनाकर खिलाएं। कपड़ों वाले साबुन से
सर को धो लिया जाए तो सर की खुश्की ख़त्म हो जाएगी। पेट की आदि से ज़्यादा बीमारियां खाना ऐसा और चबाकर खाने से ख़त्म हो जाती हैं। जो लोग मोटे हों और दुबले होना चाहें तो वो लीमू और सब्जियां खाना शुरू कर दें। सोने से कबल अखरोट खा लिया करो, इससे आपके दिमाग को ताकत मिलती है। पुदीने की एक टहनी 1 लीटर पानी में उबाल लें और दिन में 3 बार पिएं। मैदे की तेजाबियत दूर हो जाएगी। भुने हुए चने रोज़ाना खा लेने से खांसी की बीमारी दूर रहती है और खांसी से हमेशा के लिए निजात मिल जाती है। बादाम, किशमिश और केला दूध में शामिल करके पियो, ताकत में इजाफा होगा और जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। पानी में गुलाब मिलाकर पी लिया करो, आपका चेहरा हमेशा खूबसूरत रहेगा। सांस की तकलीफ हो या एलर्जी हो तो अदरक की चाय इस्तेमाल करने से बहुत अफाका होगा। बात हमेशा तमीज़ से और एतराज़ हमेशा दलील से किया करो। अगर बात के लिए तमीज़ नहीं और एतराज़ के लिए दलील नहीं तो फिर खामोशी ही रहा करो। पड़ोसी का बच्चा भूखा है, ये किसी को नहीं मालूम, मगर पड़ोस की लड़की कहाँ जाती है, ये सबको मालूम है। जिंदगी ने मौत से पूछा, लोग क्यों मुझसे इतना प्यार करते हैं और तुमसे इतनी नफरत। मौत ने जवाब दिया, क्योंकि तुम एक खूबसूरत झूठ हो और मैं तलख हकीकत। इंसान को उसके हालात नहीं ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।